دو پہاڑی ہے اس کے بیچ میں بدعت نکالتا ہے. ویسے یہ عام بات ہے, موجودہ کے اندر ہے, لیکن وہاں کا سلسلہ جو خاص موقع علماء تھا کہ جو کوئی بدعت کو نکالتا ہے لگواتے ہیں کہ اس پر تلعن الملائکۃ تلعن اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ ایسے انسان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. جو کوئی بدعت کو نکالتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے. والملائکۃ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, والناس اجمعین تمام لعنت بھیجتے ہیں. بدعت کو نکالنے والے, دین میں ایسا کام کرنے والے جس کا ثبوت دین میں نہیں ہے, جس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے, جس کو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, ایسا کام کر رہا ہے ثواب کی نیت میں, ثواب کو مل کر رہا ہے. اللہ مان رہے ہیں کہ ایسے عالم اللہ لعنت بھیجتا ہے, فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, تمام لعنت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا فرائض کو کو اس کی فرض نہ قبول ہوگی نفل قبول ہوگی. کتنا بدترین عمل ہے بدعت, کہ بدعت کے عمل بدعت کرنے پر نہ اس کے فرائض قبول ہوں گے نہ نوافل قبول ہوں گے. اتنا ہی نہیں, ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں, صحیح ترتیب میں یہ حدیث ہے, امام البانی نے کو صحیح قرار دیا ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحبۃ, بس اللہ تعالی نے توبہ دروازہ بند کر دیا ہے اس آدمی کے لیے جو بدعت کو اپناتا ہے, جو بدعت پر عمل کرتا ہے, جو بدعتی آدمی کے لیے, بدعتی کے لیے اللہ تعالی نے توبہ دروازہ بند کر دیا, توبہ قبول نہیں کرتا ہے, توبہ قبول نہیں کرتا ہے. بدعتی کا اللہ توبہ قبول نہیں کرتا ہے, اتنا بدترین عمل ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شیطان کے نزدیک گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے. شیطان چاہتا ہے, شیطان یہ نہیں چاہتا کہ گناہ کرے, شیطان چاہتا ہے کہ بدعت میں پڑ جائے, کیونکہ جو گناہ کرنے والا چاہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں. شرابی جانتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے, اس لیے وہ ممکن ہے سمجھنے کی کوشش کرے. جوا کھیلنے والا جانتا ہے کہ جوا کھیلنا گناہ ہے, اس طرح جو چور جانتا ہے چور کرنا گناہ ہے, زناکار جانتا ہے زنا کرنا گناہ ہے, چنانچہ ممکن ہے کہ وہاں وہ توبہ کرنے سے بچ جائے. لیکن بدعتی جو عمل کر رہا ہے اس مدد نہیں کام کر رہے ہیں, اس مدد نہیں کام کر رہے ہیں. بدعتی سمجھتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں, اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, کیونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھتا ہے, اچھائی سمجھتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں. جیسے قرآن خوانی کرنے والے سمجھتے ہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں, اس میں حرج کیا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں کیا حرج ہے, گناہ تو نہیں ہے. ملاد کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ ملاد کر رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے, دین کی باتیں ہوتی ہیں, وہ اس بارے سمجھتا ہے. یاد رکھیے میں نے پہلے کہا ہے کہ دین نام ہے اتباع کا, دین نام ہے پیروی کا, اللہ تعالیٰ کے کلام کی, نبی کے فرمان کی. جو اللہ کے کلام ثابت ہے عمل کرتے ہیں وہ اللہ کا عمل آپ کا قبول ہے, نبی کے فرمان ثابت ہے عمل کرتے قبول ہے. اب من سے اضافت کرتے ہیں, من سے زیادتی کرتے ہیں, جب تک یہ کہتے ہو قبول نہیں ہے. اس کے حدیث سے بنی ایک حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. برائے ابن عازب فرماتے ہیں, برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی صلی ساتھ تھا, اور فرمایا یا اے بڑا, جب تم سونا چاہو, سونے کا چاہو کہ میں سونوں گا, تو کہا پہلے وضو کر لو, یہ نماز کرو, نماز کی جیسی وضو کرو. پھر کہا دائیں کروٹ لے جاؤ, اور اس کے بعد دعا پڑھائی, سکھائی کہ دعا پڑھو اللہم الجواب جوہری الیک, لمبی دعا ہے. آگے ہے وآمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, آگے دعا میں ہے وبنبیک الذی ارسلت. حضرت برائے ناظم آتے ہیں کہ دعا کو میں نے یاد کر لیا, یاد کرتا میرے پاس گیا, میں نے دعا پڑھی, کوئی دعا پڑھی, آخری میں تھا میں نے پڑھا وبرسولک الذی ارسلت. اب میں کہ نہیں, میں نے کہا تھا نبی الذی انزلت, وہی کہا جو میں نے کہا ہے, میں نے کہا تھا نبی الذی انزلت, اور تو پڑھ رسول الذی انزلت. دیکھیے یہاں پہ بات غور کرنے کی ہے, صحابی سے اتنا ہی کیا ہے کہ نبی کی جگہ پر
नबी का नाम वहां पर था तो सुन दिया। चूंकि आप नबी भी हैं, रसूल भी हैं और तमाम उलमा जानते हैं, आलिम जानते हैं, जिसको तारीफ वो जानते हैं कि नबी का मकाम रसूल के मुकाबले में कम है। रसूल का मकाम ज्यादा है। मेरा ही दिमाग कहता है, उनके दिमाग में आया होगा अगर नबी भी है, रसूल भी है, अगर यहाँ पे नबी रसूल से हट क्या है? आपने फरमाया है नबी का नाम सरता, अगर मैं कह दूं रसूल का नाम सरता तो हट क्या है? अब रसूल भी तो है, अब मकाम रसूल का मकाम ज्यादा हुआ करता है, तो हट क्या है? उन्होंने ये समझ करके रसूल नबी के रसूल का कर दिया। इतना भी सही है। जो मैंने कहा था वो कहो, दादा कीजिए, थोड़ी सी तहरीफ पसंद नहीं था मैं, थोड़ा सी थोड़ी तबलीग की जिप सही इतना दवाई से तबलीग की जब नबी का रसूल बनाया गया, आप बर्दाश्त न हुआ, अल्लाह ने कहा वही कहो, तो आज पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी शरीयत पे कभी जा रही है। आज कुछ लोग हैं जो नई शरीयत निकाल रहे हैं, कादियानी है, नई शरीयत निकाल दिया, बहाई है, नया दीन निकाल दिया, मजूसी उसे राफिजी है, वो दीन निकाल दिया, नया निकाल दिया, इधर से मुतज़िला है, बहुत से मज़ाहिब है, तो नया दीन निकाल दिया। और इसके अलावा दीन के अंदर नई नई बातें निकाली गई, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, उन्होंने भी दीन नई नई बातें निकाल दी। ना सोचिए, जब इतनी तब्लीग गवाह इस्लाम में नहीं है, नबी को रसूल बनाया जाए, फिर क्यों कम हम कहें इतनी तब्लीग की जाए? अल्लाह का गवाह हो। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह के यहाँ उसका अमल रायगा ना हो, उसका एक कि रसूल की इत्तबा हूबहू करे, जैसा कि हदीस साबित है। उसमें अपने मन की में जो कुछ आता है, मन के मुताबिक अमल न करे, बल्कि जो कुछ साबित अमल करे। हज़रत उमर फारूक अन्हु के पास उन्होंने फरमाया कि इन्ना लिकुल्लि साहिबिन मिन तौबतुन गैर असहाब हवाए वल बदा। फरमाते हैं कि हर गुनाह का तौबा है, हर गुनहगार तौबा करता है, उसको तौबा तौफीक मिलती है, लेकिन वो लोग जो ख्वाहिश की पूजा करते हैं, जो नफ्स परस्त हैं, जो नफ्स की पूजा करते हैं और जो बिदअती हैं, उनकी तौबा नहीं है। फरमाते हैं कि हर गुनाह का तौबा है, लेकिन ख्वाहिश परस्त हुआ करता है, जो बिदअती है उसकी तौबा नहीं है। फरमाते हैं कि अना बराअ मिनहुम, मैं ऐसे लोगों से बड़ी हूँ जो लोग बिदअत का इर्तिकाब करते हैं, मैं उनसे अलग हूँ। वह बराअ मिन्नी, वो मुझसे अलग है। इसी तरह से नाफे फरमाते हैं, गालिबा ये ताबई हैं, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के पास एक आदमी बैठा हुआ था, उसको छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हज़रत नहीं हाँ कदा मान रसूल तो हमें ऐसा नहीं सिखाया है, हमें रसूल ये नहीं बताया कि हम रसूल अला रसूलिल्लाह कहें, ना कि उनको नहीं बात नहीं, उन्होंने बुला नहीं क्या है, उन्होंने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, उसमें इजाफा कर दिया, वस्सलाम अला रसूलिल्लाह का इजाफा उन्होंने किया है। ये कोई गुनाह नहीं है, गलती नहीं है, ये कोई गाली नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह की तारीफ और रसूल की सलामती, कि नहीं, ये नबी से साबित है, कहा ये बिदअत है, ये तुमने जो बात आपने इस पे इजाफा कर दिया कि बिदअत है, ये अल्लाह का महबूब मामूद नहीं है। फिर हमारा कि हमें सिखाया है हम ये कहा करें, जब ठीक आदमी कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये कहा करें, यही साबित हदीस से है। उसमें मतलब ये उसी हदीस से मालूम होता है इससे कि दीन में ज्यादती करें, चाहे आपकी नियत जो भी हो, नियत अच्छी हो या बुरी हो तो नहीं है, वो चीज जो कि साबित नहीं है, हम ज्यादा अपने मन से ज्यादती कर रहे हैं, इस्लाम में महबूब नहीं है, ऐसा अमल अल्लाह के कबूल नहीं है, वो अमल अल्लाह के रायगा बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि जो कोई दीन नई बात निकालता है तो बात वो कहना चाहता है कि आप ने दीन में कमी कर दी, आपने दीन को मुकम्मल से तब्लीग नहीं की, कोई बताया नहीं, कुछ छिपाया है, वो आप इजाज़त करना चाहता है, या वो ये कहना चाहता है कि हम नबी से ज़्यादा जानते हैं, ये पैगाम चाहता है कि नबी से ज़्यादा जानते हैं, नबी को कोई बात नहीं मालूम थी कि नहीं बताया है, मालूम बताते हैं, ये नबी की तौहीन कर रहा है। ऐसा आदमी दीन नहीं मानेगा तो नबी की तौहीन कर रहा है। मालिक घुमाते हैं। याद रखिए, बिदअत बहुत ही बदतरीन अमल है,
उम्मीदी का दावा कबूल नहीं किया जाता है, बल्कि वो हदीस जो बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम में भी है, वो मशहूर हदीस है कि बिदअती हौज़े कौसर से महरूम किया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आप फरमाते हैं कि इन्नी फ़ातिमल हौज़, कि ऐ लोगों मैं तुमसे पहले हौज़े कौसर पर जाकर विराजमान हूँगा, तुमसे पहले मैं हौज़े कौसर पर जाऊँगा, मैं हर एक को जो वहाँ आएगा, मन मर अलैया, जो मेरे पास आएगा मैं अपने हाथ से उसको दाना कौसर पिलाऊंगा। कहा कि जो पी लेगा दाना कौसर पी लेगा उसे प्यास न लगेगी, तो क़यामत का दिन होगा, 150,000 का दिन होगा, 50,000 का एक दिन होगा, बहुत लंबा दिन होगा, धूप इतनी तेज होगी कि लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी छाती पसीना होगा, ये मामला होगा। फरमाते हैं उस दिन मैं हौज़ कौसर पर होऊंगा, मैं लोगों को अपने हाथ से जाम पिलाऊंगा, जिसको प्यास पिलाऊंगा उसे प्यास न लगेगी, उस प्यास से वो हिदायत पा जाएगा। अब फरमाया कि मेरे पास मेरे पास कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसको मैं पहचानता हूँगा, वो मुझे पहचानते होंगे, मतलब ये होगा कि उनके आज़ाए वजूद से मैं पहचान लूंगा कि मुसलमान है, ईमान वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, उनके हाथ पांव चमकते होंगे, आज़ाए वजूद चमकते होंगे, जो अल्लाह नबी की हदीस है कि जो कोई नमाज पढ़ता है और नमाज में पूरा वजू करता है, जहाँ तक पढ़ता है क़यामत उसके वहाँ जो उसके आज़ाए वजूद चमकते होंगे और रोशनी फूटेगी। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में हौज़ कौसर होऊंगा, मैं उन्हें पहचान लूंगा कि मेरी उम्मत के लोग हैं और मजाने के मेरे नबी हैं, पहचान लूंगा। मैं चाहूंगा तुम्हें मुझे पानी लाओ, फिर अल्लाह ताला की जो है उनके बीच में एक आड़ पैदा हो जाएगी, एक आड़ कायम हो जाएगी। मैं कहूँगा ऐ मेरे साथियों, ऐ फरिश्तों, ये आड़ क्यों कायम हो गई? ये तो मेरे साथी है, ये तो मेरे मुसलमान बंदे हैं, ईमान वाले बंदे हैं, मुसलमान बंदे हैं, ये आड़ क्यों कायम हो गई? तो फरमाया जाएगा ऐ मुसलमान इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ मुसलमान आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके मरने के बाद कैसे कैसे बिदअत निकाले हैं, कैसे कैसे बिदअत का अमल किया है, आपको नहीं मालूम। मालूम हो हदीस से मालूम होता है कि जो बिदअती है, बिदअत का इत्काब करने वाला है, तो हौज़ कौसर में महरूम किया जाएगा। हौज़ कौसर एक हौज़ का नाम है, चश्मे का नाम है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा, जो पानी बहुत ही लजीज होगा। अब तो अपने हासिलों को पिलाएंगे, लेकिन जो बिदअती होगा, जो दिन में नई बात निकालता है, नई नई चीजें निकालता है, ऐसा आदमी उस हौज़ कौसर में महरूम कर दिया जाएगा। एक हदीस जो बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि इन्नकुम तदखुलुल्लाहि हुफातन औरातन गुरला, ऐ लोगों क़यामत तुम किस हाल में आओगे कि तुम नंगे पांव होगे, नंगे बदन होगे और गुरला गैर मख्तून होगे, खतना किए हुए नहीं होगे, इस हाल में तुम वहां आओगे। फिर फरमाते ही कि तुम मेरे पास पेश किए जाओगे, मैं तुम्हें देख बचा लूंगा कि मेरी उम्मत के लोग हैं। फिर मुझे कहा जाएगा ए मोहम्मद आपको नहीं मालूम इन्होंने अक़वाल कैसे कैसे निकाले हैं। मैं कहूँगा इन्होंने मेरे बाद दीन में इनहराफ किया, इन्होंने मेरे बाद दीन में नई बात निकाला है, दूरी हो। मैं कहूँगा कि यहाँ से दूर हो जाओ। नबी कहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत से इतना प्यार करने वाले हैं, कितना प्यार था नबी को अपनी उम्मत से, अंदाजा कीजिए, उस बात को याद कीजिए। अब सल्लल्लाहु का एक यहूदी गुलाम था